In this video, we will provide you proper knowledge about pharmacist exam. So how to prepare for a various government pharmacist examination and about the post, its syllabus and exam paper. So we will give you a detailed knowledge about this all government pharmacist examinations. So first of all, as per this cover, we can see about the various post of a government pharmacist examinations. So this is a RRB, ESIC, AIMS, CGHS, SSC, BSF, Vyapam, DSSB, RPSC, MPSC, GPSC, okay, Staff Selection Committee, etc. Number of governing bodies conduct the pharmacist exam all over the India. So first of all, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarocks. So first of all, our question is about the what is pharmacy. So pharmacy, a science of a medicine associated with research, manufacturing, analysis, selling and distribution of a drug. So जो हमारा प्रोफेशन है फार्मेसी, ओके, वो साइंस है ऑफ ए मेडिसिन और मेनली एसोसिएटेड विद द रिसर्च, कि हमारा जो प्रोफेशन है वो जुड़ा है रिसर्च के साथ, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिसिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग्स एंड देयर डोजेस फॉर्म. सो टू डिलीवर द सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग एंड डोजेस फॉर्म टू द कम्युनिटी, कि फार्मासिस्ट के पास जो भी कोई पेशेंट्स आते हैं, कोई पर्सन आता है टू टेक द मेडिसिन, ओके, to we have to deliver the safe and effective drug and dosage form to the community and society. कि जो फार्मेसी स्टोर है, ड्रग स्टोर, कि वहाँ पे मेडिसिन, विटामिन, मेडिकल रेसिपी, केमिस्ट्री, बिजनेस, हेल्थ केयर वगैरह जो है वो इसके रिलेटेड इंक्लूडेड है. सो नेक्स्ट इज वो इज फार्मासिस्ट, अ क्वालिफाइड पर्सन हैविंग ए क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिग्री और डिप्लोमा इन ए फार्मेसी, registered pharmacist in a state pharmacy council, have a license to sell, distribution and manufacturing of a medicine. So pharmacist कौन है? तो he is a person with a qualification of degree or diploma in a pharmacy. Registered pharmacist is must require from a state pharmacy council and a license to sell, distribution and manufacturing of medicine, की जिसको हम कहेंगे फार्मासिस्ट. So career as a pharmacist, one person can make their career as a pharmacist. So you can make your career as a pharmacist and community as well as a hospital pharmacist in a healthcare department. In government sector, there is a post of a pharmacist in a hospital and dispensary run by government. So mainly two posts, senior pharmacist and junior pharmacist, okay. गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके, या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज की जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो उनको कंडक्ट करता है, तो उसके अंदर मेन दो पोस्ट होती है, सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट एंड जूनियर फार्मासिस्ट एज अ ग्रेड 3. सो यू कैन मेक योर करियर एज अ community and hospital pharmacist in healthcare department. So healthcare department, government pharmacist job under the health department, okay, कि जो फार्मासिस्ट की जो जॉब है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है, वो आती है अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट. सो ईच स्टेट हैव ए वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इन ए हेल्थ डिपार्टमेंट. सम पोस्ट आर परमानेंट लाइक सीनियर एंड जूनियर फार्मासिस्ट, ओके, कि जो एक बार एग्जाम देने के बाद जब भी आप वो पोस्ट पे पोस्टिंग होती है आपकी, तो दैट वाज योर परमानेंट पोस्टिंग. एंड सेकंड इज ए सम आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि जो 11th मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं या फिर 12 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, कि वो टर्म पर्टिकुलर टेन्योर के बाद आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यूअल करवाना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ मिशन एंड नेशनल रूरल हेल्थ
मिशन, NRHM जिसको हम कहते हैं. सो RBS के फार्मासिस्ट, NRHM एंड NHM फार्मासिस्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है. बट टुडे वी मेनली डिस्कस अबाउट द परमानेंट post in a health department as a senior and junior pharmacist. So you can be a government pharmacist by pass the examination of various governing body. For example, each state have a exam governing body to conduct a pharmacist exam. Like in Delhi Subordinate Service Selection Board DSSSB कि जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो एग्जाम को कंडक्ट करता है. यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. कि समझो कि DSSSB की रिक्रूटमेंट आई है फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट, तो आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे. देन यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, देन यू विल बी ए फार्मासिस्ट इन ए हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दैट दिल्ली गवर्नमेंट. सो सिमिलरली हर एक स्टेट की इस तरह से गवर्निंग बॉडी होती है एग्जाम लेने के लिए, और वो जो है वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं. सो दीज आर द वेरियस बॉडी लाइक दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, RRB फार्मासिस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC फार्मासिस्ट, BSF एंड CRPF फार्मासिस्ट, GPSC exam for Gujarat government, MPSC Maharashtra, RPSC for Rajasthan, then Rajasthan subordinate and ministerial service selection board RSMSS BSA. नंबर ऑफ स्टाफ सिलेक्शंस कमेटी जो है हर एक स्टेट की, ओके कि समझे कि आप महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, केरला से हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, एनी स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सभी स्टेट की अपनी ये गवर्निंग बॉडी होती है और वो अपनी फार्मासिस्ट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करते हैं. सो वेयर डू द फार्मासिस्ट वर्क. अब समझो कि आप फार्मासिस्ट बने तो आप कहाँ पे काम करोगे, तो समझो कि डिपेंड ऑन द पोस्ट. PHC सेंटर की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हम कहते हैं, CHC की जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि सिविल हॉस्पिटल्स जो होती है, देन मिलिट्री हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, ESIC हॉस्पिटल एंड ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो समझो कि आपने RRB की एग्जाम पास की है तो यू विल वर्क एज अ रेलवे फार्मासिस्ट. ESIC की एग्जाम पास की है तो यू विल वर्क इन ए ESIC फार्मासिस्ट. मिलिट्री फार्मासिस्ट जो होते हैं BSF एंड CRPF में, वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं. देन जो PHC सेंटर रिलेटेड एग्जाम्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सिविल हॉस्पिटल्स. सो डिपेंड ऑन द पोस्ट एंड वैकेंसी यू विल गेट द जॉब इन दिस सेंटर्स. सो फार्मासिस्ट एग्जाम. सो यू कैन मेक योर करियर एज अ कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट. In government sector, there is a post of a pharmacist in a hospital and dispensary run by government, senior pharmacist and junior pharmacist. So now what is the eligibility for the post? So minimum qualification, सबसे पहले हम बात करेंगे minimum qualifications की, तो it is a diploma pharmacy DPharm, okay, but DPharm with 2 year experience as a pharmacist and डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन. कि समझो कि आपने किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर जो प्राइवेट के अंदर आपने मिनिमम 2 साल के लिए आपने मेडिसिन डिस्पेंसिंग का एज अ फार्मासिस्ट काम किया होना जरूरी है. ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर DPharm. और यू आर BPharm डिग्री फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ए स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग. के समझो कि आप महाराष्ट्र के हो, सो महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए. सिमिलरली हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग जो है वो अपने फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंतर्गत जो है वो लाइसेंस देता है. एंड एज लिमिट इज 21 to 35, एक्सेप्शन एज पर द एडवर्टाइजमेंट. ओके, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एज के अंदर के एक्सेप्शंस होते हैं बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट के. हर एक पोस्ट पे कई बार कुछ न कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. सो एज लिमिट बट मिनिममली 21 to 35. ओके, DPharm students can also apply, but
required there is a 2 years of experience as a pharmacist. नेक्स्ट, कब जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस के समझ हम बात करें तो एमफार्म एंड फार्मडी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर द आवर प्रीवियस स्लाइड। कि समझो कि आपने मास्टर डिग्री की है या फिर आपने फार्मडी का कोर्स किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ओके, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट फार्मासिस्ट पोस्ट। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमारे प्रीवियस स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग टू रहेगी। एज रिलैक्सेशंस एंड एक्सेप्शंस आल्सो अवेलेबल अप टू 5 years इन केसेस ऑफ एक्स आर्मी मैन, स्टाफ, फिजिकल डिसेबल पर्सन्स एक्सेट्रा, की जो एज रिलैक्सेशंस आपको मिलता है अप टू 5 years, ओके, अप टू द 5 years। कि समझो कि 35 है तो 40 तक वो एक्सटेंड हो सकती है। बट इन केसेस ऑफ ओनली एक्स आर्मी मैन, कि समझो कि आप स्टाफ हो ऑलरेडी, फिजिकल डिसेबल हो वगैरह, कुछ न कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। दिस एक्सेप्शंस आर वेरी एज पर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट एंड डिटेल नोटिफिकेशंस, की ये एक्सेप्शंस जो है वो चेंज होते रहते हैं, ओके, डिपेंड ऑन द पोस्ट एंड एडवर्टाइज। जो जब भी कोई पोस्ट आती है तो वो लोग डिटेल नोटिफिकेशंस पब्लिश करते हैं और वहाँ पे ये एक्सेप्शंस, रिलैक्सेशंस वगैरह की नोटिफिकेशंस वहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट एग्जाम इज हैविंग ए 2 मेन पोर्शन। अब बात करते हैं हम एग्जाम के पैटर्न की। तो फार्मासिस्ट एग्जाम इज हैविंग ए 2 मेन पोर्शन एंड सेक्शंस इन एग्जाम। तो पहला सेक्शन रहेगा जनरल स्टडी एंड सेकंड पोर्शन है फार्मेसी। जनरल पोर्शन रहेगा 30%, फार्मेसी 70%। वन कॉमन पेपर कवर्स बोथ टाइप ऑफ MCQ। एक कॉमन पेपर रहेगा, ओके, दो अलग अलग पेपर्स नहीं रहेंगे, बट इट कवर्स द बोथ टाइप ऑफ MCQs। प्रॉपर स्टडी रिक्वायर फॉर बोथ सेक्शंस। दोनों सेक्शंस की अच्छे से स्टडी करना जरूरी है टू गेट क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन। अब हम कंसीडर करते कि कंसीडर देयर आर 100 MCQs इन द फार्मासिस्ट एग्जाम। So 70 MCQs from pharmacy portion and 30 MCQ from general study portion. Negative marking is also there for each wrong answer. 0.25 or 0.33 negative marking based on the notice or notification. कि ये जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन एंड बेस्ड ऑन द पोस्ट। कई बार 0.25 भी होता है नेगेटिव and sometime it is a 0.33 marks. So next बात कर लेते हैं about the salary. Okay, what is the salary offer the government to you? तो salary is different post wise and state wise for government pharmacist. Minimum starting salary is 29,500 per month. Okay, this is the minimum first criteria, and in some post इट इज ऑल्सो मोर देन 31,500। तो ये है मिनिमम सैलरी, कि कुछ पोस्ट में रहती है 29,000 एंड समटाइम इट इज ए 31,500। दिस इज द स्टार्टिंग वन। आफ्टर दैट मैक्सिमम सैलरी डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड ग्रेड पे ऑफ यू, एंड इट शुड बी अप टू 80,000 to 90,000 पर मंथ। मैक्सिमम सैलरी ऑल्सो बेस्ड ऑन द सीनियरिटी ऑल्सो, ओके, आप कितने सीनियर है, ओके, वो सीनियरिटी के बेस पर भी आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो फिक्स होती है 80,000 to 90,000 पर मंथ, ओके, एंड स्टार्टिंग सैलरी रहती है 29 to 31,000 अराउंड, ओके। मैक्सिमम सैलरी डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आपका एक्सपीरियंस, जैसे भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, ओके, उसके अकॉर्डिंग टू आपको जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट रहता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सिलेबस, ओके। सो सिलेबस में हमने जो बात की थी कि जनरल स्टडी, कि जनरल स्टडी में जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल स्टडी रिलेटेड MCQs, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स, general intelligence and reasoning questions, and
मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, ये सब जनरल स्टडी के अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जनरल अरिथमेटिक है, तो उसमें जो नंबर सिस्टम होती है, बोर्डमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप जो कुछ स्टूडेंट्स ने रेलवे की एग्जाम, ESIC, ओके, देन DSSB की जो एग्जाम्स दी होगी, एम्स फार्मासिस्ट, हम सभी को पता होगा इस टाइप के जनरल अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आफ्टर दैट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर रिलेशनशिप, ओके, इस टाइप के जो अलग अलग सब टॉपिक्स है वो आप कवर कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशंस वगैरह जो है कवर होता है इंटेलिजेंस में। जनरल अवेयरनेस में आप क्या पढ़ाई करोगे, तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है वो भी देखना जरूरी है। देन इंडियन जियोग्राफी इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंडियन पोलाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर से भी क्वेश्चंस होते हैं कई बार। देन इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। देन स्पोर्ट्स अपडेट, की जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट होती है। देन समझे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो फेमस कप्स होती है अलग अलग, ओके, कि जो हॉकी के खेल, हॉकी है, क्रिकेट है, देन बैडमिंटन है, चेस है, ओके, जितने भी एथलेटिक्स है उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी अलग अलग टूर्नामेंट्स होती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। देन जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू द 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में। अब हम बात करें फार्मेसी सिलेबस ऑफ एग्जाम, सो समझो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेम एंड पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, की जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपको करना जरूरी है। आफ्टर दैट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और फॉरेंसिक फार्मेसी। मेन मेजर सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो है फार्मास्यूटिक्स पूरा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फॉरेंसिक फार्मेसी एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजिकल नॉलेज एंड बायोकेमिस्ट्री। सो सिलेबस देखकर एक आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट जैसा हो, तो सबसे पहले मोटिवेट होना जरूरी है कि यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायमंड्स के लिए ये जो है वो प्रयत्न कर रहा है, बट ही इज टू क्लोज टू इट्स ड्रीम, ओके, कि ये जो पर्सन है अपने ड्रीम से काफी नजदीक है। वो हम देख सकते हैं कि ओनली अराउंड 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जितना ही दूर है उससे डायमंड्स, ओके, बट ही हैड गिव अप फ्रॉम हिज एफर्ट्स। बट ये जो सेकंड पर्सन है वो काफी दूर है फ्रॉम दैट, बट स्टिल ही इज डूइंग ट्राई, ओके। सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन इज दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ओके, कि कई बार आप बहुत ही नज़दीक होते हैं आपके ड्रीम्स के और तब आप अपने एफर्ट्स करना जो है वो छोड़ देते हैं, ओके। सो फ्रॉम द फेल्योर्स नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ओके। कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है वो बहुत ही नज़दीक होता है, एंड देन
यू गिव अप फ्रॉम द ट्राइस, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बट ही हैड गिव अप, एंड वो जो है वो वापस जा रहा है। बट समझो कि अभी और जो थोड़े प्रयत्न करता और थोड़े ऑफर्स लगाता, दे ही विल अचीव इट्स गोल। ओके, सो यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड योर गोल। सो आगे इसी के लिए आपके लिए हमने ये टिप्स डिजाइन किए हैं, टिप्स फॉलो टू बी ए फार्मासिस्ट। ओके, ये सिलेबस तो है आपके पास पैटर्न आ गई एग्जाम की, पोस्ट कैसे आती है, कौन से डिपार्टमेंट्स में रहती है। ओके, अब मेन है कि आपको जो प्रिपरेशंस करनी है उसके लिए कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी है। तो फर्स्ट वन, ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी विल मेक इट इजियर टू क्रैक द फार्मासिस्ट, सो कवर basic of each and every topic. Start the preparation with main and hard subjects like pharmacology, statistics, pharmacognosy, and do not skip the minor subjects and topics. They will help you in qualify the exam. तो सबसे पहले मेन और हार्ड सब्जेक्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करिए आप। बेसिक नॉलेज, मेक ए रूटीन एंड डू ईच सब्जेक्ट एवरी डे, नेवर डू वन सब्जेक्ट होल डे। मतलब कि आपको क्या करना है, रूटीन बनाओ, अच्छे से शेड्यूल बनाओ, एंड सभी सब्जेक्ट को दिन में 2 या 3 बार आप रिवाइज करो। ओके, कोई एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन नहीं पढ़ना है, यू हैव टू मिक्स अप द सब्जेक्ट्स। नेवर गेट एंसियस और स्केयर बाय अदर्स प्रिपरेशन, ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है, हम दूसरे स्टूडेंट्स को या फिर दूसरे अपने कलीग्स को प्रिपरेशंस करते देख कई बार हम घबरा जाते हैं कि उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा है, हमारी कम है। बट यू डू नॉट हैव टू कंपेयर द प्रिपरेशंस विथ अदर, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, योर गोल्स एंड योर अचीवमेंट्स। नंबर 5, स्टार्ट टू सॉल्व ओल्ड फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर्स, इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे पहले आपको ये भी एक चीज़ करनी जरूरी है कि जो ओल्ड पेपर्स है वो आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया आएगी कि कौन से सब्जेक्ट्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, नॉट द हार्ड वर्क। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे देन यू कैन ऑल्सो अचीव योर गोल। डेली सॉल्व मिनिमम 50 MCQ, ऑल्सो कंटिन्यू रिविजन साइड बाय साइड एंड सॉल्व द MCQs। बी रिलैक्स एंड डू नॉट गेट वरी अबाउट द एग्जाम, बी फियरलेस फॉर एग्जाम टू गेट सक्सेस। नेवर लिव एनी इजी सब्जेक्ट्स लाइक ज्यूरिप्रूडेंस, जिसको हम फॉरेंसिक फार्मेसी पे कहते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मेसी के जो कैलकुलेशन है, बिकॉज ये कैलकुलेशंस में से या फिर ज्यूरिप्रूडेंस में से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये समझे कि फॉरेंसिक फार्मेसी में से एक्ट पूछे जाते हैं, शेड्यूल्स पूछे जाते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी के इजी कैलकुलेशंस होते हैं कि आप विद इन 50 और 20 सेकंड्स में उसको सॉल्ट आउट भी कर सको। सो by skip that topics you can lose the marks, so do not skip this easy and simple topics. Then make notes while studying, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है कि आप नोट्स बनाइए, हैंडी नोट्स। आपको ऑनलाइन सोर्सेस में से मटेरियल तो मिल जाएगा कि समझो कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, यू गेटिंग द लेक्चर्स ऑन इंटरनेट्स, यू गेटिंग द PDFs, ओके, यू गेटिंग वेरियस नोट्स इन ए व्हाट्सएप और इन एनी ग्रुप। ओके, बट आप सबको क्या करना है, इसमें से बनाने हैं अपने एक कॉमन हैंडी नोट्स। एक आप आपकी नोटबुक के अंदर आप अच्छे से हैंडी नोट्स जो है वो तैयार करो फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज। जितने भी आपके सोर्सेज है कि इंटरनेट सोर्सेज से मिल रहा है, ऑफलाइन सोर्सेज से आपको जो भी कंटेंट अच्छा मिल रहा है वो सभी के आप अपने नोट्स बनाओ। डू नॉट रश बिहाइंड द PDFs कि मुझे ये PDF दो, वो PDF में से पढ़ो, नॉट द PDF, ओके, बट मेक द नोट्स, बिकॉज दिस नोट्स विल हेल्प्स यू इन ए रैपिड रिविजन। PDFs आपको काम नहीं आएंगे रैपिड रिविजन में, बट आपके हैंडी नोट्स आपको काम आएंगे फॉर रैपिड रिविजन्स। स्टार्ट रिवाइज फार्मासिस्ट सिलेबस, कि जो हमने आगे डिस्कस किया सिलेबस वो समझो कि आप कवर करते हो तो साथ में रिविजन भी करते रहो। Along with MCQ solution, revision is key point for you. Make list of topics covered and remaining topics, कि जो सिलेबस में से आपने कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर किए हैं
और कौन से टॉपिक्स आपके बाकी है। और ये कब पॉसिबल होगा कि जब आप नोट्स बनाओगे। ओके, आप नोट्स बनाते जाओगे, टिक मार्क्स करोगे कि ये मेरा कंप्लीट हुआ है, ये बाकी है। सो यू कैन गेट द प्रोग्रेस ऑफ स्टडी, कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, कि आपने कितना % सिलेबस कवर किया है। ओके, देन इवेल्यूएट योर सेल्फ। अब बात आई नेक्स्ट इवेल्यूशन की, आपको आपका इवेल्यूशन करना है बाय मॉक टेस्ट, फार्मा क्विज सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हाउ मच यू गेटिंग द मार्क्स। ओके, सो देयर इज ए इवेल्यूशन। नेक्स्ट इज एवरी ईयर देर आर 6 to 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, की जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी, IR, NMR, सभी में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको एक बार करना चाहिए। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, की जो कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन जो फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक होते हैं, एलिगेशन मेथड, डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बॉडी वेट एंड एज, के जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी में से आते हैं वो आपको पॉइंट करना जरूरी है। ओके, नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू। ओके, सो ये सब तो आपको करना है, बट हाउ वी आर हेल्पफुल टू यू, कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। से सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल फॉर एग्जाम नोटिफिकेशन एंड वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल फार्मेसी एग्जामिनेशन, बिकॉज